Okay, let's restart. So the second module is your C++ programming. Okay. तो आज के सेशन में you need to install your VS Code in your systems. जिनके हैं वो ठीक है, जिनके नहीं है they are going to do it. And the basics of C++ programming history. Who developed C++ programming? Bijan? B. Okay. Actually, B is silent. Bijan Stroustrup. The pronunciation is Bijan Stroustrup. Okay. He was the developer of. What happened? क्या नहीं, मुझे लगा कुछ बोला आपने. अच्छा, इट्स आप लोग ऐसे याद नहीं है, स्पेलिंग याद रखना बिकॉज इट कम ऑलरेडी केम इन द एमसीक्यू. स्ट्रॉस्ट्रप की 4 अलग अलग तरह की स्पेलिंग्स लिख दी थी, तो उसमें से आपको सही वाला आपको पता होना चाहिए. ओके, इट्स याद करने के लिए आपको जो लगे, बी जान बोलो, जागने बोलो, जो भी है, बट यू हैव टू नो द करेक्ट स्पेलिंग बिकॉज इट ट्वाइस इट केम इन द सीसी एग्जाम. Okay, that's why I'm focusing on कि you should know. It's Bijan Stroustrup. Okay, in which year it was developed? 80? 1980s. है ना, very smart answer. It was developed in 1983 at US in AT&T Bell Labs. Bell Laboratory में ही develop हुई थी, like C programming. Okay. Earlier it was known as C++ को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाँ, किसी को कुछ पता है? बोल सकते हैं. C with classes. Okay, it is also known as a superset of C. No doubt C language was or is a very powerful language. A person cannot deny that कि बिना उसके आगे वो कोई आगे एड ऑन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नहीं कर सकता. इसीलिए C के साथ ही क्लासेस का कंसेप्ट ऐड हुआ, तो इसका नाम पड़ा C विथ क्लासेस. ओके, एंड प्लस प्लस जो सिंबल है, ओके, प्लस प्लस सिंबल इट वाज गिवन बाय अ डेवलपर. ये किसने दिया था? रिक मस्केटी. Rick Muscati was a developer who gave this increment operator. ये increment operator दिया, तब से इसका नाम पड़ा C++. C++. Otherwise it was earlier known as C with classes. ठीक है, ये छोटी सी हिस्ट्री थी. ओके, it was developed by Bijan Stroustrup in 1983. And this increment, that plus operator, was given by Rick Muscati, and it was known as C with classes. Okay, so in C just we have discussed in logic building. हमने C का छोटा सा part discuss किया, that you have the basics of integer, data type, keywords, that everything whatever the concepts are in C are going to be used in C++. ठीक है, तो हमने C में वो बेसिक्स नहीं करा, तो वो सब चीजें हम C++, only the syntax will be different, तो वो the basics will be covered in C++. It is in your sessions itself, but सबके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि अरे हमारा वो छूट गया लॉजिक बिल्डिंग जहाँ पे हमने C करना था, लेकिन हम इसमें कवर अप कर सकते हैं. ओके, नाउ the difference between basic difference between C and C++ is, सबसे पहला डिफरेंस है कि C is known as procedure oriented programming language. C is known as procedure oriented programming language and C++ is known as object oriented programming language. Okay, anybody can tell me the difference कि object से क्या मतलब हुआ और procedure से?
You have to take admission in DAC, so you have gone through a process. एक प्रोसीजर था, सबसे पहले आपको प्री कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, then you have to give what exam. If you cleared it, then only you can select the module course and the center, and after filling or submitting the fees, then you can have this course. That means you can get admission in that. That means you need to follow the process. So वो अगर प्रोसीजर नहीं करेंगे तो आपको क्या एडमिशन मिलेगा? नहीं, बिकॉज देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा, है ना. सीडैट इज नॉट हैविंग एनी मैनेजमेंट कोटा. लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज समहाउ दे हैव. तो वहां पे क्या होगा, विदाउट गोइंग थ्रू होल प्रोसेस डायरेक्टली यू कैन गेट इनटू. तो सी प्रोसीजर ओरिएंटेड मीन्स इट फॉलो द प्रोसीजर. अगर आपने वो प्रोसेस पूरा प्रॉपर नहीं लिखा है तो फिर वो आप प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं रन कर सकते. दैट मीन्स इट फोकस ऑन द प्रोसेस, द प्रोसीजर. बट हेयर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मीट मी, है ना, तो अब वहां पे क्या होगा, आप मेन गेट से एंटर हुए तो आप प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसीजर क्या बोलेगा कि आपको पहले वहां पे जो भी प्यून या जो भी रिसेप्शन पे जो बैठे हैं उनको बोलना है. ठीक है. अब अगर हम प्रोसीजर वैसा ना फॉलो करें, प्रोसेस बोले तो क्या होंगे, पहले उनको पूछेंगे आप देवेंद्र को मैडम हो, वो लैब में गए, वहां ऐसे 3-4 कमरे घूमते हुए फिर ये लैब में आए. तो ये इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद अब ऑब्जेक्ट की बात करें कि डायरेक्ट आपने रिसेप्शन से पूछा और आपको डायरेक्ट मेरे पास लेके आए. तो दैट इज की फोकस किया कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना है, तो दैट इज योर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता था और यहाँ पे डायरेक्ट द फोकस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट वहाँ पे प्रोसेस क्या है उसके पीछे नहीं, डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो द वर्क वी हैव टू डू, इट इज फोकस्ड ऑन दैट. ठीक है. द बेसिक डिफरेंस इज इट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट फॉलोज विच अप्रोच, top down approach या top to bottom, and it follows Pritha bottom up approach. Okay. The program execute starts from the main function in C programming and it follows the process downwards, right? That means एक simple example देखिए, main whatever the task here, आपका execution यहीं से स्टार्ट होगा और लाइन बाय लाइन टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एग्जीक्यूशन होता है. C++ में you will initialize the class and your main will be here and you are going to create object. तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से ही हो रहा है. बट एज एन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स इट इन्वोक द क्लास ऑब्जेक्ट एंड इट विल jump towards upward. That is why it follows bottom up approach. कभी किसी ने कोशिश करी है क्या मेन ऊपर लिखे क्लास नीचे डिक्लेयर किया हो? करके देखना क्या होता है, फिर बताना मुझे. That is a task for you. Okay? अभी तो सीखेंगे जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. So understood? Top down approach and bottom up approach. अभी आपको प्रोग्राम नहीं बताया लेकिन एक जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेन is the very important function which executes the program. जैसे घर में एंटर होने के लिए it is very necessary to have a main door, क्योंकि हर बार हम खिड़की से जंप करके नहीं आ सकते, है ना. तो वैसे ही अगर मेन फंक्शन it is not present in your program, that means you can't execute it. Okay, so it is very important. और कोई भी फंक्शन है ये कैसे पता चलता है, we recognize with this open closed parenthesis. ये जिसके सामने है that means it is a function, it is going to perform a particular task. अब main का खुद का एक फंक्शन है ही, लेकिन उसके अंदर मतलब उसका एग्जीक्यूशन का पार्ट है और हम जो ओपन क्लोज है वो हमारा टास्क इसके थ्रू एग्जीक्यूट होने वाला है. We are going to write the code here. Okay. So procedure oriented, object oriented, top down approach, bottom up approach. फिर yes, C++ किसने पढ़ा, जल्दी बताइए. नहीं हरीश, अरे मुंह से बोलो. नहीं ओके ठीक है, कोई बात नहीं. ओके
डिफरेंस छोटे छोटे बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो जो OOPS के जो कंसेप्ट है, दैट इज योर एनकैप्सुलेशन, वो तो बताओगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. These are the four main methods or object concepts of object oriented programming. तो वो हम यहाँ बोल सकते हैं कि C में नहीं है, C++ में है, ठीक है. एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ में है, C में नहीं है. तो ऐसे हम छोटे छोटे बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जो मेन है मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ. इसमें अब आ गया कि यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट के लिए C में आप इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शंस. कौन सा था आपका फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल printf एंड scanf, ठीक है. यहाँ पे आपके लिए है cout, cin एंड दीज आर ऑब्जेक्ट. ये है ऑब्जेक्ट है आपकी आयोस्ट्रीम क्लास के, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन थे, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स. ये एक डिफरेंस है. इसके बाद here we can easily declare global variable. यहाँ पे हम global variable easily declare कर सकते थे, but in C++ we can't do. बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, but accessibility matters. So यहाँ पे easily हम access कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर we need a scope resolution to access it. Directly नहीं हो सकता. I'll explain you while creating a program. Okay? So 1, 2, 3, 4. हाँ. C में mapping between function, okay, and data. It is sometimes difficult. कि हमने किस फंक्शन में कौन सी वैल्यू दी है, लेकिन इन C++ इट बिकम्स इजियर बिकॉज जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो उस क्लास के ही फंक्शन को डिक्लेयर करेगा. जैसे आपकी कॉपी है, फॉर एग्जांपल अ सिंगल कॉपी, आपको पता है कौन से पेज पे क्या लिखा है, दूसरा कोई बता सकता है क्या, नहीं. तो वहां पे जिस क्लास का, अब मैंने बोला कि यू हैव टू थिंक अ वैल्यू, ओके, सो यू विल थिंक समथिंग, बट some other will not disclose that what you have thought, है ना. तो आपने जो सोचा वो आपके दिमाग में. तो वैसे ही the class in which you are going to create multiple function, when we are going to create an object of that class, so it will directly invoke that particular function. So mapping between data and function is easier in C++ than C. That is also a basic difference in C and C++. What else? These are the basic. बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है, इसमें होता है. और नेम स्पेसेस विच इज प्रेजेंट इन C++, C में नहीं होता. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे. ओके, बिकॉज उसमें लैब में आपके दिया है कि आई विल शो यू द आज का सेशन क्या है. इट विल बी इजी फॉर यू कि क्या पढ़ना है हम लोगों ने. नहीं, डायरेक्टली आ जाता है. अभी आ ही नहीं रहा. कई बार क्लिक भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही आ जाता है.
So this is your installation, the need of C++, features of C++. Okay, C++ versus C, just we now saw. Okay, history छोटी सी हमने देखी और फिर writing first program. ठीक है, तो the need of C++, now we will talk about it. Why we need C++? Because the last concept of C programming was structure. Okay, shortcut में आपको बताती हूँ. Earlier we were having array. Why we need array? Because if we want to store a similar type of data, n number of values, so we have a facility of array. ठीक है, कि एक अगर मुझे डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू मुझे चाहिए लेकिन मल्टीपल, सो वी हैव एन फैसिलिटी ऑफ एरे. तो अब मुझे एक बार में तो एरे की फैसिलिटी मिली. नाउ आई वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट. अब स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन. Put it hand if you are start yawning. Okay, ठीक है. So now I need to store different type of data in a single unit. That is your structure introduce हुआ. ठीक है, C++ में structure introduce C में structure introduce हुआ. That means कि under a single name I can store different type of data types, right? कि जहाँ पे आप देख, मुझे स्टूडेंट का नाम अगर लिखना है तो it will be in character, रोल नंबर है इट विल बी इन इंटीजर. ओके, एंड सो ऑन. तो एरे में अगर रहता, अगर मैं एरे की फैसिलिटी है तो मुझे फिर एक इंटीजर का एरे बनाना पड़ता, फिर मुझे एक कैरेक्टर का एरे. सो अंडर अ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, एंड इट कैन होल्ड डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा. अगर सिंपल बोला जाए तो इट इज हेट्रोजीनियस. ओके, अब by default structure was public. That means anybody can access the data. There is no security. Public था by default. Public garden में जाते हैं, anybody can pluck the flowers, है ना. लेकिन हमारे गार्डन से कोई बाहर वाला कोई आए तो हम क्या करते हैं, will start shouting and will scold the person, right? So similarly structure, नो डाउट इट वी हैव द एक्सेसिबिलिटी कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें वर्कआउट कर सकते थे, बट ड्यू टू देयर वॉज नो डेटा सिक्योरिटी, एनीबडी कैन क्रिएट अ वेरिएबल एंड कैन एक्सेस इट. सो दैट वॉज द ड्रॉबैक फॉर सी प्रोग्रामिंग. इसीलिए C++ इंट्रोड्यूस हुआ. जार्नेस स्ट्रॉस्ट्रप का फेवरेट लैंग्वेज थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड C++ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड सिमिला 67. You can note it down, Simula, SIMULA. Okay, it is a combination of C and Simula 67, which was based on object oriented programming. Harish, if you don't want to write, you can skip it, if you can keep it in your mind. Your expression shows something, that's why I am asking you. If you can remember it, it's okay, it doesn't matter. Simula, SIMULA, Simula 67. Huh? Simula 67. It was based on object oriented programming. So C and Simula 67 से object oriented classes का concept मिला, तब जाके आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी C++. ओके, एंड नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स द 4 बेसिक कंसेप्ट. आपके आ गया एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ एनकैप्सुलेशन. ओके, हाँ, नाउ सबसे पहले तो क्लास आया. अब स्ट्रक्चर से क्लास में क्या डिफरेंस है? क्लास इज सिमिलर एज स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. But if we define class is a collection of data member and member function, and by default class is private. By default class is private. That means कि कोई भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. तो जो कंसेप्ट C में मिसिंग था वो यहाँ पे ओवरकम हुआ when we add the concept of, that is not we, the Janus Stop had started inventing C++ programming. He started in C, he was working in C programming only, but when he found that there was no data security, then he added the concept of classes in C,
एंड इट बिकम्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तब जाके वहां पे बना. ओके, आई विल शो यू बाय कोड. टर्बो सी में ही दिखाती हूँ क्योंकि असेसिबिलिटी वहां पे आपको समझ में आएगी. कोड भले किसी को सबको ना समझ में आए, बट आई विल शो यू कि असेसिबिलिटी कैसे है, तो फिर डिफरेंस आपको पता चलेगा. ओके, आपको C++ बताना. सॉरी. ओके, लीव. आई विल राइट फॉर यू पीपल, क्योंकि आपको तभी समझेगा कि कैसे है. ऑल सी प्रोग्राम्स आर C++ प्रोग्राम. सी में हम इंक्लूड करते थे हैश इंक्लूड stdio.h. here I will include iostream.h. okay, तो पहले iostream ही समझ लेते हैं. iostream, it is a combination of three classes: istream, ostream and stream. okay, so istream से जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? istream. okay, then we have ostream. yes, Payal. These are the three classes. Combination of this it has created iostream.h, that is the header file. iostream का आपको ऑब्जेक्ट मिलता है cin. जैसे मैंने आपको बताया था कि cin cout में वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो cin is the object of iostream class. okay, cout is your ostream class का ऑब्जेक्ट है, एंड stream से आपको मिलता है insertion and excursion operator. extraction and insertion operator. okay, so these are the object of istream, ostream and stream. okay, I am including one more header file which is required in C++, this turbo C, but in VS Code it is not required. That is conio.h is the full form is console input output .h. console means आपका जो ये black window है, this is known as console window. okay, runtime window, output window and console window, and this is your program window, input, और आप क्या बोलते हैं, compile time window. it is also known as compile time. compiling means where you are going to write the code and where you can find out the errors. okay, now I'll making a structure struct student in C we can only declare the variables. C में सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, C++ पे हम उसमें फंक्शंस भी बना सकते हैं. so int id name. in this we are not having the facility of data type string data type नहीं है, तो हमने क्या किया, कैरेक्टर का एरे बनाया प्रियंका, जिसमें हमने उसको एक डिफॉल्ट साइज दे दिया 20. दैट मीन्स कि 20 0 to 19 तक वो उतने अल्फाबेट्स कंटिन्यूस में लिख सकते हैं. ओके, एंड सिंटेक्स is that we have to terminate with semicolon. okay, and we can create a variable here also, otherwise we can create in main function. so how we are going to write the variable? keyword, structure name and variable. now cout statement, whatever you are going to write in double quotes, as it is going to print on the output screen. now
वी हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल्स इन स्ट्रक्चर। अब क्योंकि वो इस स्कोप के बाहर है, ठीक है, बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन प्रियंका बिकॉज उसको कुछ भी नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो आप वह नहीं है तो you can understand like, see the scope of structure is limited here and now we are going to need to use the variables, so via this we can use it. That means s dot id and s dot name, and if this is the input, now I want to print it s dot id and cout s dot name. Slash n is known as next line. The function is next line. What is known as? Yes, escape sequences. Slash n, slash t, slash b, slash r are all known as escape sequences. These are non-printing characters जो कि output आप प्रोग्राम में लिखते हैं लेकिन उसका इफेक्ट द फंक्शन वी कैन सी ऑन द आउटपुट स्क्रीन. ओके, I'm writing it's here, just it is going to hold the output screen. Okay, and clear screen that we will not get anything. Now you can see, as I told you, the execution starts from main, so it is okay. ये C++ है तो बैकग्राउंड में जाएगा, C रहता तो डायरेक्ट चला जाता है. सी आउट स्टेटमेंट, सी जैसे पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर के लिए भी कोड होता है, तो आपकी जो फंक्शन है यू कैन सी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कहाँ पर आया है, इन लाइन में, क्योंकि हमने सी इन किया तो सॉरी इस सी आउट स्टेटमेंट आया है तो आप देख सकते हैं ओ स्ट्रीम में आया क्योंकि आपको मैसेज प्रिंट हुआ. नाउ इट विल कम इन सी इन. चलो मैंने लिखा हरीश, सही लिखा है, गलत कर दिया. ओके ठीक है, तो ये सेम हमने सिंपल क्या किया, सी का प्रोग्राम यहाँ लिखा, लेकिन अब कोई भी इसका वेरिएबल बना के इसको यूज कर सकता था. अब इसको हमने क्या किया, क्लास चेंज कर दिया. ठीक है, एरर्स, आईडी नेम दोनों बार 4 बार यूज किया. तो असेसिबिलिटी, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि वहां पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया, डायरेक्टली वी कैन यूज, दैट मीन्स वहां पे डेटा सिक्योरिटी नहीं थी. दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि क्लासेस का कंसेप्ट ऐड हुआ. ओके, नो डाउट क्लास एंड स्ट्रक्चर आर सिमिलर, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट क्लास इज प्राइवेट एंड स्ट्रक्चर इज पब्लिक. ओके, तो अब यहाँ पे आपको नहीं है. ओके, तो अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एनकैप्सुलेशन. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनीवन? रैपिंग ऑफ डेटा. मुझे लंच से पहले वाले ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे, लंच के बाद ऐसा लग रहा है सब शांत हो गए. क्यों, ज्यादा खा लिया या अभी बोर हो रहा है? यस, सुबह ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे थे, सही बता रही है. अभी सबके चेहरे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मार्क, क्या? हाँ, कुछ नहीं समझ रहा है, अभी कुछ समझाया नहीं एक्चुअली में. यस, अभिनव, नहीं सीरियसली ऐसा लग रहा है, मुझे पढ़ाते पढ़ते ऐसा फील आ रहा है कि मैं रूम में अकेली हूँ और कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा था मुझे. यस यस पायल. अब टेक्निकल में आएंगे तो प्रोग्रामिंग रहेगी, तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा रहेगा, सारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा. ओके, नाउ एनकैप्सुलेशन, एज अपेक्षा सेड, रैपिंग
wrapping up of data under a single unit. Okay, so as I told you that class is a collection of data members and member function, and by default it is private. So whatever the things comes under in class is now encapsulated to in that region. As I told you that you people are PG DAC August 24 batch. So n number of you are the object. Okay, and I have comprised in single unit, that is your PG DAC August 24. ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन मीन्स कि हमने सबको एक सिंगल यूनिट यानी कि एक डिपार्टमेंट में मैंने उसको बाइंड कर दिया. तो यहाँ पर भी हम जब क्लास को इसमें फंक्शंस रहेंगे, आप जावा में मेथड्स बोला जाता है, तो यहाँ पे आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन और आपके फंक्शंस और उसमें और फंक्शनैलिटी, तो वो सब आपने बाइंड कर दिया एक सिंगल नेम क्लास. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने ओके यहीं पे चेंजेस कर दिया. सी में सिर्फ हम क्या कर सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे. यहाँ पे हम फंक्शन भी अंदर क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग s.id बिकॉज अब उसी स्कोप में है. स्कोप मीन्स कि ये जो आपका ओपन एंड क्लोज क्लास का ब्रेसेस है, इनसाइड दिस वी आर यूजिंग इट, सो नो नीड ऑफ राइटिंग डॉट ऑपरेटर. ओके, एंड राइट नाउ इट इज प्राइवेट. तो एरर आपको, अच्छा एरर क्यों नहीं आया ये बताओ, क्योंकि हमने आईडी और नेम लिया ही नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ कॉल एस. हाँ, नाउ स्ट्रक्चर में आप जब क्रिएट करते एस जो नाम था दैट इज नोन एज वेरिएबल, एंड इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. yes or no? Object, हाँ, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बिकॉज क्लास खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है. ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ क्लास. ओके, how do you know that a person belonging to first class, second class, जो भी होता है, दिस इज बिलोंग, क्योंकि पर्सनैलिटी का उसका जो अटायर गेटअप, by looking at it cube, the object. Okay, how do you know this is a classroom? Because we are the object who are representing this. It is a classroom because teacher and students are there, right? हम नहीं रहेंगे तो it is a क्या room, है ना? ये four walls are the object. Okay, 4 walls are the object which is representing that this is a room. वो भी नहीं रही तो फिर कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना? So object which represent the data of class because class does not represent itself. Okay, अब class से हमने function कॉल कर लिया get और s dot put. It won't work because get and put is not accessible, क्योंकि class private है तो हम नहीं कर सकते. तो फर्स्ट आपका जो कंसेप्ट था एनकैप्सुलेशन, दैट मीन्स कि अब इसमें देखो डेटा मेंबर्स भी आ गए. The variable declared in the class are known as data members and the functions defined in the class are known as member functions. Okay, so definition ही बोलती है class is a collection of data members and member function. Okay, the encapsulated means इतना सब जो भी हमने लिखा उसको हमने क्या, अब हम यहाँ बोलेंगे हमने क्या क्रिएट किया, we have created a student class. हम ये बोलेंगे कि id, name और get और put function, no, we will say that we have created a student class. That means everything we have binded into a single name as student. So that is the concept of what? Encapsulation. सबसे कॉमन एग्जाम्पल बुक में कहीं पे भी आपने देखा होगा तो कैप्सूल का दिया जाता है. कैप्सूल इज कंप्राइज ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका मेडिसिन है तो खोल दिया तो बिखर जाएगा, तो इसीलिए सिंगल यूनिट. सो सिमिलर वट एवर द फंक्शनैलिटी यू आर गोइंग टू राइट इन द कोड ऑफ अ क्लास, दैट इज नोन एज द नेम ऑफ द क्लास. तो ये आपका हो गया कंसेप्ट encapsulation. Now the concept of data abstraction. Okay, so we have 3 access modifiers or specifiers known as private,
पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. ओके, प्राइवेट एज आई गेव द एग्जाम्पल कि हमारा खुद का गार्डन है तो हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे. दैट मीन्स असेसिबिलिटी किसकी है? जो उस घर में रहता है उसी की, है ना. तो अब जैसे यहाँ पे अभी देखो मैंने जब तक उसको कॉल नहीं किया था तो यहाँ पे एरर नहीं आया था. मीन्स कि आईडी नेम सिर्फ क्लास के अंदर ही थे तो इसलिए कोई एरर नहीं था. बट एज आई हैव कॉल्ड इन्वोक्ड विद द ऑब्जेक्ट, मैंने बाहर स्कोप के किया तो वहां पे एरर आया. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट है, बाहर वाला आके कोई नहीं कर सकता. पब्लिक मीन्स इट कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. ठीक है, पब्लिक गार्डन की कोई भी आके, गार्डनर कितना भी डंडा लेके भाग रहा लेकिन हम लेंगे. Now the third is your protected, which is similar as private, but in case of inheritance we can use or access in other class. हम वहाँ पे उसको दूसरी क्लास में भी यूज कर सकते हैं. Okay, I'll give an example later when we are going to use it in terms of inheritance. ठीक है, so we always write our data members under private section. It is also a keyword. Okay, जितने भी white highlighted आपको दिख रहे हैं all are keywords. Okay, and we want that it should be accessible, so that's why we are going to write public. Now अब आपको कोई एरर नहीं है, आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो. Understood? So encapsulation and data abstraction. Now data abstraction means what? Data abstraction means एक बुक लाइन पढ़ी होगी, वट नहीं, दैट एसेंशियल, इट विल हाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इट विल शो ओनली द एसेंशियल पार्ट. व्हेन यू प्ले अ गेम यू विल हैव, आपको उसको बैकग्राउंड में कोड है वो नहीं दिखता, लेकिन आप जो टूल्स वहां यूज कर रहे हैं वही कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव गिवन पब्लिक, हमने क्या दिया है, ओनली द फंक्शन, मेंबर फंक्शन. क्यों? हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे डेटा मेंबर्स के साथ छेड़छाड़ करे. तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू, मैंने यहाँ पे असाइन करा, ठीक है, s.id, it will give error, it is not accessible. Okay, so most of the time that the data members should write under private section, कि हम चाहते हैं कि हम या कुछ functions भी हम दे सकते हैं, that we doesn't want that anybody can access through creating object, कि कोई भी उसको publicly access करे. So that the part which is not accessible will be written in the private section. ओके, वो उसके प्राइवेट ब्लॉक में लिखा जाएगा. और जो आप चाहते हैं दैट मीन्स विच इज एसेसिबल थ्रू एनीवन, वी विल बी राइटिंग इट इन पब्लिक सेक्शन. ओके, तो अभी हमने क्या किया, दैट वी डोंट वांट एनीबडी कैन एक्सेस डायरेक्टली आईडी और नेम. अभी कैसा हो रहा है कि आपने जब यहाँ से कॉल किया है s.get, है ना, एक मिनट मैं सिर्फ इतना ड्राई रन करके दिखाती हूँ. देखो ये डायरेक्ट जंप हुआ, तो अब यहाँ पर आया तो इनडायरेक्टली आईडी, अब जैसे ही आप गए तो इनडायरेक्टली फंक्शन के थ्रू कहाँ जाएगा, आईडी यूज हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट आईडी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सो दैट इज योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट वी हैव हाइड द accessibility ऑफ आईडी एंड नेम डायरेक्टली. ओके, एंड वी आर गिविंग द accessibility, दैट मीन्स द एसेंशियल. हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि कोई भी गेट और पुट फंक्शन उसको यूज कर सके. ओके, समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि आपके सामने ये कोड है, नाउ यू जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो आपने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड लगा दिया, इसका मतलब है कि आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट आ गया. यस, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको हमने एक्सेसिबिलिटी दी और जितनी नहीं वो हमने प्राइवेट सेक्शन में. गॉट इट? यस और नो? एनीथिंग रॉन्ग? ओके, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा. सी व्हाई आई एम इंक्लूडिंग सम ऑफ द एग्जांपल इन बिटवीन, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि कोड दिखाया है और उसमें पूछा एक्सप्लेन करो. तो कंसेप्ट अगर पूछा तो वर्बली वी कैन गिव एन डेफिनेशन और वी कैन गिव एन एग्जांपल. अब ऐसा कोड लिखा है, बताओ कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन कहाँ शो करा. अब अगर नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट यू, अब तो आप लोग बता सकते हो, लेकिन एक के लिए सोचने का कि कहाँ बताएंगे.
दे एवरीवन नोज प्राइवेट पब्लिक का कंसेप्ट, लेकिन जब ऐसा कोड सामने सिंपल एग्जांपल दिया कि अब बताओ, तो फिर वहां पर समटाइम्स समबडी विल फंबल इट, कि उसको नहीं समझ में आया कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर जो है एक्सप्रेशनलेस होता है ना। जिन्होंने भी दिए होंगे इंटरव्यूज, समटाइम्स वी नेवर नो दैट वी आर सेइंग करेक्टली और नॉट, क्योंकि वहां बता दिया एक्सप्रेशन तो वो बोलेंगे इनको पता लग गया। ओके, सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड abstraction. Okay, then inheritance. Inherit means the properties that we property can acquire from the base class, जो भी एक main class से दूसरा। सबसे common example है parent and child बताया जाता है, that is the hereditary or inherited, that some of the properties that can be hired in parents। बोलते हैं ना, जैसे हमारे नेबर बोलते हैं अरे ये तो उसके जैसे दिख रहे हैं, इसके जैसे, तो what is that is inherited property, but in coding that is the different it will be the inherited, but there will be different types of। okay, C++ में हमारे पास 5 तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन जावा में we will having only 3, है ना? नहीं, जावा वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। yes, गुड। पृथा के पास ये 2 जावा वाले तो देख ही रहे, कुछ नहीं बता रहे। ओके, बट दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। आज के लिए सिर्फ आपको ये जो कंसेप्ट मुझे समझाना था, कंसेप्ट वो पॉलीमॉर्फिज्म, दैट वन कैन बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, very well you people are aware, if not so a person can be behave in a different manner, like I am a teacher here, I am a friend of someone, I am a mother of someone, so मैं तो सिंगल ही हूँ ना, तो I am behaving in a different manner। वैसे ही polymorphism that की a function name can be work differently, तो उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, आपका compile time and run time polymorphism। okay, we'll discuss it later, क्योंकि उसके भी 3 नाम होते हैं। कंपाइल टाइम तो एक ही बताया, उसके स्टैटिक फिर वो बहुत सारे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अंडरस्टूड दिस मच। ठीक है, अब हम आते हैं वापस बेसिक पे। अब वो कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे एनकैप्सुलेशन बताना पड़ा। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। लैब में सबसे पहला क्वेश्चन यही लिखा है उसमें, कैन यू राइट इट? आर यू feeling sleepy? I'm talking to you. You. Why you're looking here? No. Sure? Yeah. Okay. So we are going to include hash, IOStream. Okay? Yes. अब आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन। Sometimes you see this, है ना, sometimes this, और मैं तो ये भी कई बार नहीं बताया, खैर VS कोड में नहीं चलता। हाँ, तो any difference for this? Return type, yes. int और void जो लिखा है that is return data type. okay, function जो लिखा जाता है उसमें 3 चीजें होती है, फंक्शन, रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न डेटा टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड द पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ओके, सो आई एम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट, देन वॉइड और नथिंग। सी इफ आई एम राइटिंग ओनली, ये C++ इसमें चलेगा, VS कोड में बाय डिफॉल्ट आपको इंट में नहीं लिखना रहता है, वॉइड नहीं वर्क होता, इसलिए यहाँ पे समझा दे रही हूँ। सी मैंने सिर्फ लिखा मेन, ठीक है, नथिंग कोड स्कोप पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। नाउ आई एम कंपाइलिंग इट, इट इज गिविंग मी 1 वार्निंग, नॉट एरर, सो इट सेज फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो रिटर्न अ वैल्यू, बट आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो हम एक लाइन क्या इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, 0, बिकॉज वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी विल रिटर्न इट 0। नाउ the error will be removed। okay, now I am giving this int main, again it will give a warning, तो फिर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, return 0। if I am writing void main,
void is a keyword which treated as null, ना तो कुछ देता है ना कुछ लेता है, ठीक है। तो मतलब आपका फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग एनी वार्निंग, एरर नहीं, वार्निंग, ओके, इट इज नॉट गिविंग एनी वार्निंग। बट हमने जब int लिखा तो समझ में आता है बिकॉज वी हैव गिवन द रिटर्न डेटा टाइप int, but when I am not writing anything, so still it is giving, because by default the return data type of main is int. Keep it in mind कि by default अगर हम कुछ नहीं भी देते हैं तो उसका रिटर्न डेटा टाइप इंटीजर ही होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। एंड when you are going to use VS Code और एडवांस वो, तो आपको by default जैसे ही आप प्रोग्राम ओपन करते हो हैश इंक्लूड, तो int main ही आता है, तो वहाँ पे void नहीं चलेगा, because if we include void sometimes it's not give you a proper output for that. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, when you are going to work on that simultaneously I will make you aware कि कुछ चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट करती हैं, कुछ वहाँ नहीं करती, तो as it is, तो दोनों भी इसलिए मैंने कहा कुछ मैं इसमें बताऊंगी, कुछ आपको उस पर वर्क होगा, फाइन, ओके। नहीं, मैं फिर int ही लिखती हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर, ओके। C, हाँ एक चीज और, C has a limitation that whatever the variables you want to declare, it should be at the starting scope. ये मेरे से स्किप हो गया डिफरेंस कि C के स्कोप स्टार्टिंग में ही जितने भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो आप कर सकते हैं। इन C++ at any time, at any moment, anywhere of the code you can declare the variable, क्योंकि C में वहां पे एरर आता था, ठीक है। जैसे मैंने int लिखा है फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन ऊपर भी दे सकती हूँ, खैर अभी एरर, हाँ, मैंने क्योंकि इंक्लूड नहीं करी थी। कैन यू स्विच ऑन दिस समवन, दिस AC, किसके पास है रिमोट? अभिनव ने ले लिया क्या? एक्चुअली ये दो बहुत डिफरेंस है, यहाँ बीच में कुछ नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ सफोकेशन होने लग जाता है। ओके, देखो यहाँ पे एरर नहीं आया है, तो इंट मेन की वार्निंग है, लेकिन अगर ये C का रहता, आई विल चेंज इट, अरे लिया नहीं उसने, स्ट्रेंज, ओके, .cpp save as, वो CPP था डॉट, इसलिए आपको एरर नहीं दिखा। देखो डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, तो C हैज अ लिमिटेशन कि C में जो भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं अगर इसको हटा के इसको ऊपर कर दूं और यहाँ पे अगर मैं देती हूँ सिंपल फंक्शन आई एम यूजिंग इट, इट वोंट गिव यू एरर। सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंस कि C में आप कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, C++ में आप कहीं पे भी दे सकते, ठीक है, डिक्लेरेशन। So addition of two numbers, that is the basic concept of program. Okay, so now again it is like a recipe that first you have to take variables, that means your ingredients, and the process, whatever the formula or the arithmetic operation or the functionality you want to use it, you have to apply that, and the last is your output. Whatever the dish you have prepared, so you need to serve it like this, you have to give the output of a program. Okay, so now we want to add two numbers, that means how many variable we are going to require? Priyanka, Ruko? 3. Okay, so 2 is for taking, third one is just to hold. Okay, everybody knows how to use cout in syntax? Yes? Then you can write in your copy that start writing it a basic program, सबको आता है, तो फिर मैं आप लोगों को डिफिकल्ट देती हूँ,
Harish, you write swapping of two integer without using third variable. नहीं? क्यों? Shall I create a single program for you people, or you are going to write it your own? It's your choice. Okay. Fine. See, we have declared three variables, two for taking input and one to store the output. Okay. We can directly also print the output also, but I'll show you the two ways. So cout statement is for your output. As I told you that it is in double quotes, whatever you want to write as it is going to print in the output window. So I am giving /n. Here we can also use keyword end l also, end line. Okay, but it should be at the last of the cout statement. Okay, now I am writing enter to integer number. Now C in A, C in B. C में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी याद रखना पड़ता था, पर स्कैनएफ और स्कैनएफ में एम्परसेंड साइन भूल गए तो उसमें बहुत सारे एरर थे, तो वो सबसे पीछा छूट गया है. नाउ डायरेक्टली यू कैन राइट सी इन सी आउट. ओके, नाउ द फॉर्मूला as already I explained you in the morning time that in maths you can use RHS or LHS, but here the expression should be on the right hand side because the value travel from right to left. Okay. Okay, std I have got it. Sorry, I have forgot to make the changes. आप लोग को एग्जाम्पल समझा रही थी ना? Okay. One warning because of return 0. Enter to integer number. Some student directly take input, directly cin लिख देते हैं, तो that is not good for you because you people are future developers, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत थर्ड पर्सन यानी कि जो क्लाइंट कस्टमर है आपको उसका सोच के आपको डिजाइन करना है. ओके, अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं देती तो ये आपको स्क्रीन क्या दिखता, ब्लैंक, है ना, तो कुछ भी टाइप करते. बट अब यहाँ पे क्योंकि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, मेंशन है कि यू हैव टू एंटर टू इंटीजर नंबर. ओके, तो फिर आप यहाँ पे इंटीजर नंबर एंटर करोगे तो आपको आउटपुट मिला. समटाइम्स यू फिल गूगल फॉर्म्स, वहां पे अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो आपको समझ नहीं आता कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या फिल करना है, तो फिर हम किसको बोलते हैं, अरे कैसा फॉर्म बनाया है, इंस्ट्रक्शन तो देना चाहिए. तो ये आप लोग अपने लिए नहीं सुनना चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है. तो डे 1 से जस्ट यू स्टार्ट कि आप जो इंस्ट्रक्शंस है दैट शुड बी प्रॉपर. अगर मैं वी कैन कमेंट लाइन, सिंगल कमेंट करना है तो डबल स्लैश. ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड हियर. अब आप देखो यहाँ पे मैंने रन किया तो इट इज ब्लैंक. अब कॉमन पर्सन को नहीं पता है कि उसको क्या करना, आपको पता है क्या, लेकिन किसी को नहीं पता, उसने कुछ भी एंटर किया. तो नाउ व्हाट हैपेंड, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 58855, गार्बेज वैल्यू. ओके, सो अ गुड प्रोग्रामर इज जो पहले इंस्ट्रक्शन दे. इसीलिए आई एम हैविंग अ हैबिट ऑफ कि मैं पहले ही स्टेटमेंट देती हूँ, तो आप लोग को भी वैसे ही देना है. दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, उसमें भी आपको रहेगा. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? Okay, just a minute. I'll show you the list of the program.
अच्छा उसमें हेलो वर्ल्ड बोला था, मैंने तो सीधे प्रोग्राम अर्थमेटिक बता दी. Okay, for writing your first C++ program, I showed you directly. Print hello world था, तो वो आप लोग सी आउट स्टेटमेंट कर सकते हो. एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट पावर ऑफ अ नंबर, स्वैप ऑफ टू नंबर्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आज के लिए इतना ही है. ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना है. कॉपी पे एक प्रोग्राम लिख के बताओ मुझे. देन विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. जिसके पास नहीं है देन यू कैन ओपन योर लैपटॉप्स, आप उस पर कर सकते हो. बट फर्स्ट, हाँ, क्लियर स्क्रीन फंक्शन देख. ओके, देखो अभी पुराना दिख रहा है आउटपुट, है ना. तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन की जो भी आप कंपाइल करने से पहले जो भी बैकग्राउंड मतलब कंसोल विंडो पे जो भी है उसको वो इरेज कर देगा इसके लिए. ठीक है, और अभी मैंने करा तो देखो आपको बैक नहीं मिलता लास्ट में. अगर आपको एक चीज, हमें ये थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन राइट इट हियर a प्लस बी. तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा. अच्छा मैंने गेट सी एच नहीं दिया इसलिए मुझे ऑल्ट एफ करना पड़ रहा है. VS कोड में तो आपका प्रोग्राम ऊपर रहेगा, नीचे आउटपुट विंडो रहती है, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप वहीं पे देख सकते हैं आउटपुट. यहाँ पे हमारे पास दो अलग विंडो रहती है. ठीक है, नाउ विच प्रोग्राम यू वुड लाइक टू राइट इट इन योर कॉपी. हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, गुड. I will be the compiler, no doubt I will find out the errors.